और जिस दिन का उद्देश्य दिव्य सज्जनों मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना, नए मतदाताओं का स्वागत करना और इस बात को याद दिलाना कि हमारा हर एक वोट कीमती है। हमारा हर एक वोट हमारी देश की दिशा और भविष्य को तय कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई लेडीज एंड जेंटलमैन वी से दैट एवरी वोट मैटर्स, एवरी वोट counts. And this year, the theme which we have for the NVD is nothing like voting, I vote for sure. And though it continues from the previous year, but once again it highlights the very importance of individual responsibility and the power of voting in a democracy. तो देवी सज्जनों, इस राष्ट्रीय महत्व के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आयोग की तरफ से सभी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी को, और उन्हें मैं आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable CEC, Shri Rajiv Kumar ji, Honorable EC, Shri Ganesh Kumar ji, former CECs, ladies and gentlemen. On behalf of the Commission, it's my proud privilege to extend you all a hearty welcome to the 15th National Voters' Day. I extend a very warm welcome to Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. Her esteemed presence as chief guest on this occasion is not only a source of inspiration, it also motivates us for continued fulfillment of our constitutional mandate for free and fair elections. I extend a warm welcome to Honorable Union Minister Shri Arjun Ram Meghwal ji. The Ministry of Law and Justice has always been fully supportive of initiatives of the Commission for strengthening the electoral process. I welcome the heads of political parties and their representatives who are very important stakeholders in our democratic setup. The Commission has always considered political parties and their willing adherence to the norms as a big source of strength. I welcome visiting dignitaries from election management bodies of various countries, and a special welcome to our national PWD icon, the world-famous Sheetal Devi. I also extend a warm welcome to our guests from media who connect us with voters in every nook and corner of the country. Standing before this august gathering, I am filled with pride and gratitude as we assemble to celebrate cornerstone of our democracy, the right to vote. This day is not merely a celebration, it's a tribute to the spirit of democracy, a reaffirmation of our collective commitment to the ideals of justice, equality, and liberty. India, the largest democracy in the world, is a shining beacon of participative governance. With over 99 crore registered voters and more than 10 lakh polling stations, our electoral system is a testimony to the indomitable spirit of every citizen. These figures are not just numbers, they represent the voices, aspirations, and dreams of a billion people determined to shape their destiny. On this special day, I feel deeply moved by the faith that our citizens place in the democratic process. Democracy, after all, is not just a system of governance, it's a way of life, a shared dream that binds us all. Every vote cast is an expression of hope, a message of belief in the transformative power of collective decision-making. National Voter Day is also a moment to reflect on our shared responsibilities. Democracy flourishes not in isolation, but through the tireless efforts of voters, election officers, security forces, volunteers, media, and countless others. Each of you play a vital role
in safeguarding the sanctity of our elections. We are all aware that democracy thrives only when citizens actively engage, participate, and protect their values. Today, let us pledge not only to exercise our own right to vote, but also to inspire others to do the same. Let us guide the indifferent, educate the unaware, and encourage the hesitant, because democracy is strongest when it includes every voice, especially those who have been ignored. As we celebrate 75 years of ECI, I take this opportunity to thank my esteemed colleagues at the Election Commission of India who have dedicated themselves to ensure that our electoral process continue to set global benchmarks. As I conclude, I welcome you all once again and extend my gratitude for being here today and for your unwavering faith in the ideals that make India a proud and vibrant democracy. Jai Hind. Thank you very much, sir, for inspiring everyone to be voting by highlighting the very importance of this day. And now, ladies and gentlemen, we further celebrate the spirit of democracy by presenting the electoral photo identity cards to our newly registered voters. और देश भर से इन नए वोटर्स का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ उपस्थित 5 नए वोटर्स। माननीय राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच के सामने आकर इन नए वोटर्स को उनका एपिक प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करें। और देवी सज्जनों, आप सभी की प्रोत्साहन भरी तालियों के बीच इन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं मिस प्रीतम दुबे। अर्पित सलवान, शिव चौधरी, रामा श्रीध्रुत, और आयुषी कुमार। Ladies and gentlemen, the epic which is being presented to them is much more than just a photo identity card. In fact, it represents the empowerment, the responsibility, and the role of each of these new voters in shaping the future of our nation. बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय राष्ट्रपति जी. And ladies and gentlemen, we are very happy to announce and to share with you that the Discovery Channel has prepared a special 3-episode documentary series which beautifully encaptures the essence of our democratic process. ये डॉक्यूमेंट्री हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की उन अनकही कहानियों को उजागर करती हैं जो न केवल भारतीय चुनावों की अनूठी यात्रा को प्रदर्शित करते हैं बल्कि इसे वैश्विक दृष्टिकोण से भी दर्शाती हैं। देवी सज्जनों, आप इसमें 2024 के लोकसभा चुनावों तक की यात्रा को विस्तार से देखेंगे। इसमें भारतीय चुनावों की वैश्विक अनोखियता को रेखांकित किया गया है और साथ साथ समावेशी चुनावों को सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर तक मतदाताओं तक पहुंचने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया गया है। So we now give you a sneak peek into this documentary by the screening of its trailer. India, a fusion of vibrant cultures, a collection of traditions, thousands of years old, home to over 1 billion people. A nation that is a living portrait of the power to decide its own fate, the power of democracy. 97 crore voters, 1 million polling stations where elections take place. The entire planning then becomes a huge exercise for us. Sheer number and variety in the country is a big challenge. इतना विशाल देश है हमारा, इतने अलग अलग राज्य हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं हैं। अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो बखूबी इलेक्शन जो है हर इलाके में कंडक्ट करते हैं।
Behind every polling station created in the most remote corners of India, there were many unsung heroes. It was a journey of 1,000 steps with one simple goal: to ensure that every voter, no matter their location, could have a voice. India decides through its diversity. मैं भारत की नागरिक हूँ। मेरी पहचान भारतीय है। जेंडर बहुत बाद में आता है। India decides because in the end, the strength of its democracy, the voice of the people, defines its destiny. We have created sufficient democratic surpluses for the world as a whole. At the end of it all, the world which said, will democracy survive in this country, it has proved everybody wrong. हिंदुस्तान एक उदाहरण बन गया पूरे वर्ल्ड के लिए। वो हिम्मत है, वो हमारा संविधान देता है। ये कर्तव्य है हमारा, संवैधानिक अधिकार है। The future is written by those who express their voices. Power to shape tomorrow lies in your hands today. The decision is yours. So that, ladies and gentlemen, is the voice of democracy, the voice of India through our elections. और अब इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूं उनके विचारों के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आदरणीय कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, डिस्टिंग्विश्ड एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, सीनियर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, विदेशों से आए हुए इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के वरिष्ठ सदस्यगण, इलेक्शन आइकॉन्स, देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारीगण, and all my dear colleagues. On this auspicious occasion of 15th National Voters' Day, may I briefly take you through the corridors of the year 2024. Not only for India, but for more than 60 countries of the world, it was the election year. Bharat has the largest electorate in the world. With 99 crore electors today, it is larger than nearly 10 other biggest democracies combined. A record number of 64.6 crore electors casted their precious vote during the Lok Sabha elections held recently. While setting up 10.5 lakh polling booths, the Commission takes special pride in setting up 2 polling booths for just 1 elector each. One for Sokela Tayang, a tribal lady in Malogaon village of East Arunachal Pradesh, and another for Sadhu Haridas Ji Udasin in Banej village of Junagadh, Gujarat. And believe you me, when our polling parties reach them on foot, after trekking for hours through thick forests and water streams, and when they cast their votes, Bharat, that is India, smiles. During the general elections to Lok Sabha, the Election Commission of India becomes the biggest pool of manpower on this planet. Greater than the total employees in nearly 10 biggest federal governments of the world. Greater than the total employees in nearly 20 biggest private companies of the world. The Commission, having 500 regular staff, becomes a giant organization
by designating more than 1.5 crore staff on deputation, which include more than 50 lakh polling and counting staff, nearly 1 crore of state police forces and central police forces combined, sector magistrates, returning officers, observers, and other election staff. In 2024, the entire country witnessed the biggest ever peaceful election campaigns running across the country during the general elections to Lok Sabha, the assembly elections for Jammu and Kashmir and 7 other states, and which included and involved 743 political parties and nearly 19,562 candidates. You will also be very happy to know that the national annual revision of electoral rolls has been completed just a couple of weeks ago. As per estimates, 30 lakh people worked tirelessly to do this work in all parts of the country. More than 10 lakh government booth-level officers and nearly 20 lakh booth-level agents of various political parties. For the Election Commission of India, the elector has always been the king. For the ease of our electors, exploration of new technologies has always been a continuous process, be it hardware or be it the software. However, only the technologies that are safe and acceptable are put to use. For enhancing transparency at each stage of the election process, the Commission always ensures participation of political parties, candidates, and even their authorized agents, be it rationalizing the polling booths or preparing the electoral rolls, pre-checking of the electronic voting machines, and even satisfying themselves again by conducting mock polls at the polling stations, deploying their polling agents at all polling booths, or deploying their counting agents at all the counting tables, and so on. While criticism is always an integral part of any democratic ethos, not only our electors, but our legislature, our executive, our judiciary, our media, and people across the globe, all of them, acknowledge, realize, and admit that the legal conformity, accuracy, and transparency and speed with which India supervises and conducts its election process is perhaps unmatched in the entire world. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर आज मुझे अपनी अल्मा माटर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के बुनियादी गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नत शिर डरो ना। Wishing you all a very happy National Voters Day. Jai Hind. बहुत-बहुत धन्यवाद sir. And ladies and gentlemen, our Honorable Election Commissioner took us through this very terrific journey of conducting the elections, the Lok Sabha elections, which were organized in 2024, which lasted for almost 45 days, held in 7 phases. 646 million people voted. 330 million out of them were the women voters. Definitely this active participation of the electorate symbolizes the resiliency and the vibrancy of our democracy. And there are many stories towards it. So we have tried to encapsulate all this in the form of 2 books, which we would like to present to the Honorable President, ma'am. तो मैं माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग श्री राजीव कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि आप सबसे पहले the book entitled India Votes 2024, A Saga of Democracy. इस पुस्तक को माननीय राष्ट्रपति जी को आप भेंट करें, इसकी पहली प्रति।
ये बुक देवी सज्जनों वर्ष 2024 के चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और भागीदारीपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाने की तरफ चुनाव प्रबंधन की चुनौतियों, नवाचारों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है। और अब माननीय राष्ट्रपति जी को दूसरी पुस्तक भेंट की जा रही है, बिलीफ इन द बैलेट 3। And this book, ladies and gentlemen, is a very powerful narrative showcasing inspiring voter stories from across India. Thank you very much, sir. और देवी सज्जनों, हर एनवीडी पर हमारी ये परंपरा रही है कि हमारे राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों और उनके साथ साथ अन्य हितधारक जैसे कि मीडिया हाउसेस, हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मंत्रालय, उन्हें सम्मानित किया जाता है उनकी सेवा के लिए, सुचारू रूप से इलेक्शंस करवाने के उनके प्रयत्नों, उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए, और इसके साथ साथ मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु उनके द्वारा शुरू किए गए अनेक नवाचार और इनोवेटिव कैंपेन्स के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड्स प्रदान कर। तो इस परंपरा को जारी रखते हुए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि आप वर्ष 2024-25 के एनवीडी पुरस्कारों को प्रदान करें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी बिगिन विद द general awards being presented to the district civil and police heads for their leadership and outstanding performance in conducting the elections. The first awardee, ladies and gentlemen, on the day is Shri Saurabh Jorwal, DEO, East Champaran, Motihari, Bihar, being recognized for accurate and error-free polling, user-friendly systems for voters, enhanced transparency and trustworthiness, and for conducting effectively managed peaceful elections. अब सम्मानित किया जाता है श्री राहुल कुमार को, DEO एवं DC, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश। व्यापक स्वीप गतिविधियों और मिशन 414 के कार्यान्वयन के माध्यम से 2024 के चुनावों के दौरान लाहौल और स्पीति में मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। एंड नाउ वी हैव श्री आबिद हुसैन सादिक, DEO, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, being recognized for taking various measures for increasing voter participation with the objective to enhance the voter turnout and participation of the general public. अब सम्मानित किया जाता है सुश्री नेहा मीना को, कलेक्टर एवं DEO, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। आपके द्वारा स्वीप के सफल संचालन हेतु भगोरिया उत्सव के मैस्कट चुनावी काका चुनावी काकी का पारंपरिक परिधान पहनकर अभियान चलाया गया, जिससे लोगों में मतदान के प्रति खासी रुचि जगी। Recognition now to Shri Arjun Sharma, DEO, South Andaman, Andaman and Nicobar Islands, recognized for demonstrating outstanding logistics, personal management in one of the toughest geographies of India and successfully integrating the primitive and vulnerable tribal group of Shompins for the first time in history. Recognition now to Shri Harvinder Singh, DEO, District Doda, Jammu Kashmir. Ladies and gentlemen, Dharkai is a village in the Doda district of Jammu Kashmir, known as a silent village of India due to high prevalence of hearing and speech impairments in the community. Shri Harvinder Singh ji ensured remarkable participation of the deaf and the mute voters. And now the recognition to Ms. P.D. Nitya, SSP Pulwama, Jammu Kashmir. Recognized for outstanding contribution to the successful and peaceful conduct of Assembly and Lok Sabha elections in 2024 that enabled an increase in the voter turnout. और अब सम्मानित किया जाता है श्री धरुण कुमार एस को, DEO, चुराचांदपुर, मणिपुर। नए मतदान केंद्रों की स्थापना के माध्यम से आंतरिक रूप से विस्थापित मतदाताओं के लिए विशेष मतदान सुविधाएं जुटाने और उल्लेखनीय मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। नाउ रिकॉग्निशन टू मिस फौजिया तरन्नुम बी, DEO, कालबुर्गी, कर्नाटका। Recognized for the improvement of the health of the electoral roll with special focus on the enrollment of young PWD transgenders for smooth conduct of the general elections. अगले पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री अनन्या मित्तल को, DEO से DC, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। आपके प्रयासों के कारण 2024 में झारखंड विधानसभा के आम चुनावों के दौरान मतदाता मतदान अनुपात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। एंड नाउ द नेक्स्ट अवार्ड conferred on श्री नितेश वाधवानी, IPS, ex Superintendent of Police, Malkangiri, Odisha.
Recognized for mobilizing Amma Swabhiman, Amma Voters Campaign is a confidence-building measure in the left-wing extremism-affected areas and ensuring increased electoral participation. और अब देवी सज्जनों विशेष पुरस्कार, इसमें 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले सम्मानित किया जाता है श्री धर्मेंद्र शर्मा जी को, पूर्व डायरेक्टर जनरल IIIDM, recognized for being instrumental in galvanizing and institutionalizing capacity building to create a vast pool of trained officers to perform the functions of electoral administration. चुनाव प्रबंधन के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री संजय यादव जी को, अतिरिक्त डीईओ मुंबई महाराष्ट्र। मतदाताओं की सुविधा पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विधानसभा के आम चुनावों के समग्र सुचारू संचालन के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। अगला सम्मान प्रदान किया जाता है राजेंद्र क्षीर सागर जी को, अतिरिक्त डीईओ मुंबई महाराष्ट्र। मतदान केंद्रों के व्यापक युक्तिकरण, मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण, आम चुनावों के सुचारू संचालन के माध्यम से ईज ऑफ वोटिंग प्रदान करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। और अब चुनाव प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार, 3 राज्यों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और यहां से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पांडुरंग के पोल, सीईओ जम्मू कश्मीर। आपके नेतृत्व में मतदाता पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ केंद्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संचालित किए गए। And now the recognition to the state of Jharkhand. Receiving the award, ladies and gentlemen, we have Shri K. Ravi Kumar, CEO Jharkhand, recognized for conducting inducement-free elections, achieving high voter turnout in the general elections to the Legislative Assembly of Jharkhand 2024. Next recognition is to the state of Maharashtra, receiving the award, Shri S. Chokalingam, CEO Maharashtra. Recognized for the overall conduct of free and fair elections, achieving high voter turnout, and also for special efforts to reduce the election expenditure. And now, ladies and gentlemen, the awards to the government department, PSUs, for their contribution to the overall election process and management. And under this, we have the first award conferred on National Informatics Center. Receiving the award, ladies and gentlemen, the then Director General Amit Agarwal, the Deputy Director Generals R.S. Mani, M. Muthu Kumar, Ashish Asana, and Senior Technical Director Sanjay Rastogi. NIC being recognized for leadership in fine-tuning modules of NCORE systems to manage unexpected load. और अब अगला पुरस्कार दिया जाता है रेल मंत्रालय को, और पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हमारे साथ श्री सतीश कुमार जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। रेलवे के बुनियादी ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग करके ईसीआई के साथ साझेदारी में देश भर में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय को सम्मानित किया जाता है। The next recognition is to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, wherein we recognize the efforts of Shri Pankaj Jain ji, respected Secretary PNG, and receiving the award on his behalf, we have Shrimati Sujata Sharma, Joint Secretary PNG. The ministry being recognized for advocating and upholding the spirit of electoral participation through the display of customized hoardings with voter awareness messages across the retail petrol pumps throughout the country. और अब देवी सज्जनों, मीडिया पुरस्कार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है रेडियो मिर्ची को, उनके कैंपेन माई वोट माई वॉइस के लिए। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री यतीश महर्षि, सीईओ रेडियो मिर्ची नेटवर्क। रेडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के संयोजन से पूरे देश में 2 महीने का अभियान चलाया गया। अभियान में विविध दर्शकों को शामिल करने के लिए उसे रचनात्मक रूप से डिजाइन किया गया। और अब देवी सज्जनों, आखिरी पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दूरदर्शन को। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं मिस कंचन प्रसाद, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन। कैंपेन चुनाव का पर्व, देश का गर्व के लिए सम्मानित किया जाता है थ्रू various content including songs, short films, celebrity messages, discussions in local languages. Enthusiasm for voting was fostered. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी का इन पुरस्कारों को प्रदान करने का। और दिव्य सज्जनों, इन पुरस्कारों के अलावा आयोग ने कुछ चयनित अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, उनकी उत्कृष्ट काम के लिए एग्जेम्पलरी लीडरशिप सर्टिफिकेट प्रदान करने का भी फैसला किया है। एंड आप सभी की प्रशंसा भरी तालियों के बीच उनके नाम में यहां पर बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। श्री अटल डुल्लू, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर। श्रीमती उषा शर्मा, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान। श्री TVSN प्रसाद, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। श्री अमिताभ जैन, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़।
Shri Shankar Jeeval, DGP Tamil Nadu, Shri GP Singh, DGP Assam, Shri Prashant Kumar, DGP Uttar Pradesh, Shri Sudhir Saxena, DGP Madhya Pradesh, Shri R.R. Swain, DGP Jammu Kashmir, Shri Bhushan Gangrani, Commissioner BMC, and then appreciation for all the state police nodal officers of all the states and UTs. Many congratulations and many thanks to everyone. और अब देवी सजनों, हमारे महान राष्ट्र के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय श्री राजीव कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूं इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए. रिक्वेस्टिंग श्री राजीव कुमार जी टू प्लीज एड्रेस द कांग्रेगेशन. माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आयोग में मेरे साथी निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, श्री सुखबीर सिंह जी संधू, आज के इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारी फ्रंट रो में बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हेड्स, डिप्टी हेड्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेतागण, सभी सम्मानित मतदाता, हमारे स्टेक होल्डर्स और मीडिया के साथियों, मैं भारत निर्वाचन आयोग और देश के मतदाताओं की ओर से सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस और आयोग की स्थापना की 75 वर्ष पूरे होने पर आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति देश के सभी मतदाताओं को गौरवान्वित और आनंदित कर रही है. मैं माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन सुधारों के प्रस्तावों को मूर्त रूप देने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आपका सक्रिय समर्थन और सहयोग चुनाव आयोग को हमेशा मिलता रहा है. माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आज जब हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि जनवरी 2025 में आज देश में वोटर्स की संख्या 99 करोड़ के पार कर गई है. वी आर गोइंग टू बी द नेशन ऑफ 1 बिलियन वोटर्स वेरी सून, मे बी नेक्स्ट ईयर. राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो इन्हीं 99 करोड़ मतदाताओं को समर्पित है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 5वीं नेशनल वोटर्स डे के इस समारोह में संबोधन करने का मौका मिला है. इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन इन योर अगस्त प्रेजेंट मैडम. मैं 99 करोड़ मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं. मतदाताओं की परिपक्वता और समझदारी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है. उनकी जागरूकता और विवेक के कारण ही लोकतंत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है. पिछले कुछ चुनावों में मतदान स्तर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी इस यात्रा में हमें एक और लंबा सफर तय करना है. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों और युवाओं का चुनाव प्रक्रिया में अधिक सक्रियता से भाग लेने के लिए आह्वान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मतदान केंद्रों पर सबसे आगे दिखाई देंगे. माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. द ईयर 2024 was an eventful election year globally, with more than 70 countries and half the world population went for polls. Elections were celebrated in India like a festival across the country. कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक पूरा देश जैसे एक ही उत्सव में विलीन था, और मुझे इस बात की प्रसन्नता और तसल्ली है कि हम सब ने मिलकर 18वीं लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया बहुत सफलतापूर्वक. The 2024 Lok Sabha elections created many world records and milestones. It made a historic moment as India set a world record with more than 640 million voters casting their vote. It was more than 1.5 times that of the combined voters in G7 countries during their last elections. और यह उपलब्धियां सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है.
बल्कि इसकी गुणवत्ता ने हमें ज्यादा संतुष्टि दी है. सो इट्स नॉट द क्वांटिटेटिव पार्ट, इट्स द क्वालिटेटिव पार्ट विच इज फार मोर एनरिचिंग. अब की बार 2019 की पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया, signaling a new normal of women enfranchisement. More than 300 million women voters participated. महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, कलरफुल परिवेश, आंखों में आत्मनिर्भरता, हर बूथ पर जैसे महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिख रही थी. It was a real pleasure to see the long lines of women all over the country. Elections were held peacefully with near zero repolls. This was also a landmark which was created. नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में 100 से भी ज्यादा गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में पोलिंग स्टेशन पे मतदान किया. देश के हर मतदान केंद्र पर सभी वर्गों, सभी धर्मों, महिलाओं, पुरुषों, युवा और बुजुर्गों, रेगिस्तान और पहाड़, सभी जगह पर सबके साथ एक लंबी लंबी कतारें देश की विविधता की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही थी. किसी को अगर देश की परिपक्वता और विविधता देखनी है तो पोलिंग स्टेशन से ज्यादा अच्छी कहीं देखने को नहीं मिलती. इन J&K, voters participated in record numbers, a testament to democratic spirit of J&K. मतदाताओं ने बाइकॉट और बुलेट की जगह बैलेट को चुना. कश्मीर वैली रीच्ड ए न्यू पीक, विटनेसिंग 30-point जंप इन पोल पार्टिसिपेशन फ्रॉम 2019 लोकसभा इलेक्शन. और जम्मू कश्मीर में आवाम ने जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन मंजर पेश किया, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए एक मिसाल रहेगा. Voters aged 85 and above and persons with disabilities across the country were provided home facility of voting first time on a pan-India basis. They voted with enthusiasm. आज हम बुजुर्ग मतदाताओं के लोकतंत्र के प्रति उनके जज्बे और हौसले को सलाम और नमन करते हैं और अपने युवा साथियों से गुजारिश करते हैं कि आप उनसे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक मात्रा में वोट करें. लोकतंत्र आपका है, अपने भविष्य को खुद लिखें. पिछले कुछ वर्षों में मैंने हमारे मतदान कर्मियों के साथ व्यक्तिगत समय बिताया है और उनके कार्य के प्रति उनके उत्साह और समर्पण को देखकर मैं चकित रह जाता हूं. इट इज नो लेस देन ए मिरेकल कि जो इलेक्शन मशीनरी जिसमें अलग अलग विभागों के और प्रशासनिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, वो अनजान लोग चुनाव से 3-4 दिन पहले ही मिलते हैं और 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस पर एक टीम के रूप में सफल और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करते हैं और कोई भी सुनियोजित गलती नहीं करते और न कर सकते हैं. चुनाव को पूरे परफेक्शन, प्रिसीजन, पीसफुल तरीके से कराते हैं. लोकतंत्र की जिम्मेदारियों को निष्पक्षता से बखूबी निभाते हैं. लोकतंत्र में मतदाताओं का विश्वास बढ़ाते हैं और इन चुनावों को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए हमारी इलेक्टोरल मशीनरी, सुरक्षाकर्मी, रेलवे, एयरफोर्स और पोलिंग स्टाफ के सभी को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं. साथियों, पिछले कुछ समय से एक नए तरीके का प्रचलन शुरू हुआ है एंड दिस इज वर्ल्ड ओवर. आप देख रहे हैं चुनावों में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव्स के जरिए चुनावी प्रक्रिया पर बेबुनियादी आरोप लगा के लोगों को गुमराह करने का एक डेंजरस ट्रेंड चल पड़ा है. आई कंसिडर इट as the biggest single threat to the democratic process worldwide. इसके साथ ही दुनिया भर में चुनावों में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, साइबर अटैक्स, डिविसिव कैंपेनिंग जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जब तक हमारे ये पुलकर्मी, फुट सोल्डर्स पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव कराते रहेंगे, राजनीतिक दलों और मीडिया को हर कदम पर अपने साथ रखेंगे, भारत के सशक्त लोकतंत्र का कोई बालमाका नहीं कर सकता. इस लोकतंत्र को और ऊंचाई पर ले जाने की हमारी साझी जिम्मेदारी है. राजनीतिक दल जिन्होंने अपने योगदान से इस लोकतंत्र की बगिया को संवारा है, हमने अगर खाद दिया है तो उन्होंने पानी दिया है. बहुत मेहनत से, शिद्दत से जमहूरियत की बगिया को हम सबने मिलकर संजोया है. मैं आज इस अवसर पर
उनको विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार करते समय डिसरप्टिव कैंपेनिंग से बचा जाए ताकि हमारे युवा चुनावी प्रक्रिया से डिसइल्यूजन्ड होकर दूर ना जाएं। और आज के इस अवसर पर मैं उनको पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि जब भी वो कोई भी प्रश्न पूछेंगे या चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए कोई भी सुझाव देंगे, हम उसे पूरी निष्ठा के साथ देखेंगे, सुधार करेंगे और उनका लिखित जवाब भी देंगे। लेकिन फेक नैरेटिव से हमें बचना चाहिए, ये भी हम साथ साथ कहेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, I am happy to report to you that several election management bodies of the world sat in consultation over the last 2 days in Delhi and deliberated on all issues faced in conduct of democratic elections. And I am happy to tell you that all of them are here with us today, the Chief Election Commissioners and representatives of the many countries who are here. We extend warm welcome to all of them. Successful practices were noted during the conference and we decided to put our skills and energies together to resolve new challenges. The conference has come out with a Delhi declaration that should be a guidance for action in the coming years in election management world over. लोकतंत्र भारत की सबसे सशक्त सॉफ्ट पावर है। हमें सबको मिलकर इसे पल्लवित और पुष्पित करना चाहिए। हम आपके समक्ष अपने आप को पुनः समर्पित करते हैं कि देश में निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी चुनाव कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें पूरा एहसास है कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं का ट्रस्ट ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये हमारी बढ़ती पोलिंग परसेंटेज में परिलक्षित भी होती है। हमारे पूर्ववर्ती मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ने, जिनमें से कुछ आज यहां मौजूद हैं, जो गौरवमयी विरासत हमें दी है उसमें हम कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। देश के 99 करोड़ मतदाताओं को पुनः नमन के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके संदेश के लिए। और अब देवी सज्जनों, कानून एवं न्याय, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे आज के विशेष अतिथि, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूं उनके उद्बोधन के लिए। पंद्रहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर तथा भारतीय निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में उपस्थित नारी शक्ति की प्रतीक भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपका स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू साहब, राजनीतिक दलों के हमारे प्रतिनिधिगण, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदगण, एक्स सीसीज, ईसीज, विदेश से आए हुए इलेक्शन बॉडी के सदस्यगण, जिनको आज अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसे हमारे अधिकारीगण और हितधारकगण, चुनावी प्रक्रिया के इंप्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश भर से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं व वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, सबको नमस्कार। आज लोकतंत्र की जननी के रूप में विख्यात विश्व के सबसे बड़े व सबसे स्थिर लोकतंत्र को पल्लवित व पोषित करने में एक मजबूत नींव की भूमिका निभाने वाले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस में शामिल होकर अत्यंत हर्ष व गर्व की अनुभूति मैं कर रहा हूं। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह
लोगों को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने का आह्वान करता है तथा इस परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं के बीच चुनावी लोकाचार व भागीदारी को बढ़ाने हेतु जागरूकता फैलाने की मुहिम स्वागत योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर रखा गया है, जो कि डेमोक्रेसी में पावर ऑफ वोटिंग व इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेखांकित करती है। आज ये अवसर भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत से प्रेरणा लेकर विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि में परिणित करने हेतु चिंतन मनन मंथन करने का क्षण है। चुनाव आयोग की स्थापना से लेकर 75 वर्षों की ये यात्रा कई मायनों में प्रेरणादायक भी है। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि चुनाव आयोग ने विगत 7 से भी अधिक दशकों से देश में आयोजित 18 आम चुनाव, 416 विधानसभाओं के चुनाव व 98 करोड़ से अधिक मतदाताओं तथा सांस्कृतिक, भौगोलिक व सामाजिक विविधताओं से भरे हुए देश में दोष रहित व शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराकर अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे दूरदर्शी महापुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश में आजादी के साथ ही स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना के साथ साथ सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का प्रावधान किया गया। यहां ये जानना और बताना बेहद प्रासंगिक होगा कि अमेरिका जैसे देश को अपनी आजादी, उनकी आजादी का वर्ष 1776 कहलाता है। अमेरिका जैसे देश को अपनी आजादी के बाद महिलाओं को समान मताधिकार देने में 144 वर्ष लग गए। आजादी का वर्ष 1776 और महिलाओं को मताधिकार दिया उन्होंने 1920 में, तो 144 वर्ष लगे महिलाओं को मताधिकार देने में अमेरिका को। यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए 1 सदी का संघर्ष, दशकों का विरोध और एक विश्व युद्ध झेलना पड़ा, जिसके पश्चात 2 चरणों में मताधिकार मिला महिलाओं को यूके में। 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट व 1928 के द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार मिला। और भारत में एक साथ पुरुषों और महिलाओं को मताधिकार दिया। इसके लिए मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं, सराहना भी करता हूं, उनके दूरदर्शी विचार की भी सराहना करता हूं। अपने 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में चुनाव सुधारों को लेकर समय समय पर ऐतिहासिक कदम उठाए गए। इसी का परिणाम है कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अपनी जीवन चुनावी प्रक्रिया के आधार पर फल फूल रहा है और जन भागीदारी के माध्यम से नागरिकों को हर स्तर पर शासन में अहम भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। विविधताओं से भरे भारत देश के लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने वाले सभी स्टेक होल्डर्स की संवेदनाओं को महसूस करके चुनावी प्रक्रिया को सर्वसुलभ व सर्वसमावेशी बनाने का सराहनीय कार्य किया है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को अपने घरों से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध करवाने की पहल हो, मतदान केंद्रों पर ब्रेल वोटर आईडी और रैंप जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी हो अथवा चुनाव में थर्ड जेंडर समुदाय की बढ़ती सहभागिता हो, ये सब एक सुखद संकेत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी क्षेत्रों में सुशासन के मुहिम को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की संकल्पना को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित किया है,
जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को संवैधानिक संरक्षण भी दिया गया है। अब आजादी के 75 वर्ष बाद अमृतकाल खंड में नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक रिफॉर्म भी किया है। सुधारों की इसी श्रृंखला में महत्वपूर्ण रिफॉर्म है एक देश एक चुनाव, जिसकी आवश्यकता का जिक्र आज से 42 वर्ष पूर्व 1983 में चुनाव आयोग की फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण एक चुनाव सुधार था जिसकी तरफ चुनाव आयोग ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। 42 वर्ष पूर्व 1983 में चुनाव आयोग की फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। इसी संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित हाई लेवल कमेटी ने स्टेक होल्डर्स के साथ वाइड कंसल्टेशन करके महामहिम राष्ट्रपति जी को 14 मार्च 2024 को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। इसके उपरांत 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और वे दोनों सदनों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस विषय पर डेलिब्रेशन व डिस्कशन कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के लागू होने के उपरांत भारत सुशासन व गुड गवर्नेंस के नए आयाम छुएगा। मैं ये भी आशा और कामना करता हूं कि समन्वित और सतत प्रयासों से आयोग निकट भविष्य में देश के सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करते हुए 1 अरब यानी 100 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा पार करेगा, जो भारतीय चुनाव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। चुनाव आयोग 4M स्ट्रेटेजी यानी मसल पावर, मनी पावर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इन्फोर्समेंट तथा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को मैनेज करके देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। टेक्नोलॉजी के बदलते परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुष्प्रचार करके आम जन को गुमराह करने की संभावनाओं को कम नहीं आंका जा सकता। इस संबंध में समानुकूल मेजर्स लेना आवश्यक है। अंत में भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक विरासत की मजबूत आधारशिला के रूप में भूमिका निभा रहे चुनाव आयोग को लेकर मैं 4 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जन जन में विश्वास जगा, कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराया। ये चुनाव आयोग की भूमिका के रूप में है। जन जन में विश्वास जगा, कर्तव्य व अधिकारों का बोध कराया, हर नागरिक को जागरूक कर लोकतंत्र को सशक्त बनाया। भारत निर्वाचन आयोग की जय जयकार हो बारंबार। 75 वर्षों की इस यात्रा को करते हम सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए और सभी के लिए आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, अब आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर और पुनः आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल प्रेसिडेंट फॉर हर एड्रेस टू द नेशन। मतदाता दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी तथा डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंघू जी, गणमान्य अतिथिगण, विदेश से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। 15वें नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर मैं देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न आयामों में योगदान देने वाले सरकारी और निजी संस्थान
प्रशंसा और पुरस्कार के योग्य तो है ही, ये चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संस्थानों के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। आज निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस भी है। निर्वाचन आयोग ने हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सेवा के 75 वर्ष पूरी कर लिए हैं। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने 18 लोकसभा चुनाव एवं 400 से अधिक विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। इन चुनावों में निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी देशवासियों और मतदाताओं की ओर से मैं वर्तमान और अतीत के सभी निर्वाचन आयोग कर्मचारियों तथा इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण तथा उसे लागू करने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग तथा चुनाव प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। उन थोड़े से अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग के निर्देशन और निर्णय में होने वाले चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा अनुच्छेद 324 भी है। प्रथम गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन होना था। राष्ट्र निर्माताओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के महत्व को रेखांकित करता है। संविधान को अंगीकृत करने के ये दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अपने ऐतिहासिक संबोधन में इस बात को विस्तार के साथ समझाया था कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत माता लोकतंत्र की जननी है। हम सब देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व का सबसे विशाल, विविधतापूर्ण, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र भी है। आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र एक अनोखा उदाहरण है। हमारी चुनाव प्रणाली तथा प्रबंधन से विश्व के अनेक देश सीख ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग के प्रबंधन, मतदाताओं की भागीदारी, सुरक्षा कर्मियों तथा इलेक्शन मशीनरी में सहयोग देने वाले नागरिकों के बल पर भारतीय लोकतंत्र द्वारा जिस विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में पूरे देश में 10 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग ऑफिसर्स तथा कर्मचारियों सहित लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस संख्या की विशालता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कुल आबादी लगभग 44 करोड़ है। देवियों और स्वजन, हमारी समावेशी लोकतंत्र की प्रभावशाली झलक चुनाव में देखने को मिलती है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार 66% से अधिक मतदान के लिए मैं निर्वाचन आयोग और मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन चुनाव में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे समाज और देश के समग्र विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। इस प्रकार निर्वाचन आयोग ने समावेशी और संवेदनशील चुनाव प्रबंधन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।
चुनाव प्रक्रिया और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और पद्धतियों के उपयोग की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आज इलेक्टर्स वोटर आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करने वाले युवा मतदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मताधिकार से युक्त होकर ऐसे सभी नए मतदाता हमारे गणतंत्र में एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम हो गए हैं। मतदान के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई है। नेशनल वोटर्स डे हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। मतदान से जुड़े अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना आज के इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। मुझे बताया गया है कि जिला और राज्य स्तर पर भी नेशनल वोटर्स डे से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव में प्रशासन और जनता की भागीदारी बढ़ाने के इस प्रयास के लिए मैं निर्वाचन आयोग को साधुवाद देती हूँ। मेरा मानना है कि मतदान से जुड़े आदर्श और जिम्मेदारियां हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आयाम हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई वोटर्स प्लेस से सभी नागरिकों का मार्गदर्शन हो सकता है। मैं चाहूंगी कि मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति पूर्ण आस्था के साथ साथ ये हर प्रकार की भेदभाव तथा प्रलोभन से ऊपर उठकर का प्रयोग करेंगे। प्रबुद्ध मतदाता हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। हमारा लोकतंत्र विश्व समुदाय के लिए नई यात्रा करता रहेगा और इस यात्रा में हमारे मतदाता तथा निर्वाचन आयोग भागीदारी और उत्कृष्टता के नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं भारत के जीवंत लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आपका संदेश हमें हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पूरी जिम्मेवारी से अमल करने के लिए प्रेरित करता है। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम। जय हिंद।